dear students. How are you all? I hope you all must be going very well. Welcome back to the new session of Science Class 7. Okay, and today we are going to explore chapter number 2, that is about nutrition in animals. Today, students, in this session, we are going to learn the different modes of nutrition in animals. All right, we are going to learn the mode of nutrition in unicellular and multicellular animals, the role of different parts of digestive system or the digestive organs in the human beings, and also we are going to learn the nutrition mode in ruminants. All right, let's start the chapter and learn about it. See, so if we recall our previous things, as we all know that all living things need food to survive. सभी living things को food की requirement है survive करने के लिए, because food के अंदर कुछ certain substances present है जो हमें energy provide करते हैं, हमारे body की growth and repair में helpful हैं, and also they protect us from the various types of diseases. All right. So as we have discussed in the previous chapter also, that if we talk about green plants, they can synthesize their own food, right? Green plants are the only living organisms जो अपना food खुद prepare कर सकते हैं, and therefore green plants को हम autotrophs कहते हैं, and उनके mode of nutrition को autotrophic nutrition कहा जाता है. But in this chapter today, we are going to learn that how animals get their nutrition. So, all animals, including humans, need certain nutrients to stay alive and grow. And these nutrients are obtained from the food. Alright? What they're saying? That सभी animals को, including human being also, सभी animals and human beings को कुछ certain nutrients की requirement है alive रहने के लिए and अपनी body की proper growth. And ये सभी nutrients जो हैं हम animals को या human beings को कहाँ से मिलते हैं? From the food. Right? The food we eat. Okay, जो food हम खाते हैं students, वो एक ऐसी form में नहीं होता कि वो हमें instantly energy provide करे. So, इसीलिए food को break down करना into smaller particles is necessary. And ये particles को क्या किया जाता है? Soluble form में convert किया जाता है so that जो हमारे body cells है वो easily absorb कर सके. Right? तो इसीलिए most of the animals में जो mode of nutrition है that is holozoic. Means what? ये क्या करते हैं? हम सभी फूड की सॉलिड फॉर्म को अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं, जिसे उसके बाद सॉल्युबल फॉर्म में ब्रेक किया जाता है एंड देन हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब करती है और इट्स फर्दर यूटिलाइजेशन. नाउ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, व्हाट डज इट? सी, एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, एनिमल्स एंड जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स है लाइक फंगाई, बैक्टीरिया एक्सेट्रा, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं. एंड ये सभी ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ्स यानी कि ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर देयर न्यूट्रिशन ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. एंड ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को व्हाट वी कॉल दैट इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. राइट? नाउ डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्व. अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में डिफरेंट प्रोसेसेस जो इन्वॉल्व है. नंबर 1 इज इंजेशन. मीन्स इट इन्वॉल्व्स टेकिंग द फूड थ्रू द माउथ एंड इंजेस्टिंग इट. And animals have different mechanism and organs for taking in food. Means ingestion का मतलब होता है food को अपनी body के अंदर या अपने mouth के अंदर intake करना is known as ingestion. And सभी animals के पास different mechanism and different organs होते हैं for ingesting their food into the mouth or into their body. The second process which is involved in heterotrophic nutrition, that is digestion. Means what? The breaking down of food into simple soluble form with the help of digestive juices and the enzymes produced in the body. Means food का एक बार आपने intake करा अपनी body के अंदर, अब उस food को बहुत ही simple soluble forms में break करना with the help of some digestive juices, with the help of some digestive enzymes. Alright? So इन digestive juices and enzymes के through जो हमारी body में ही produce होते हैं, जब इनके through food को आपने सॉलिड फूड का इंटेक किया है उसको सॉल्युबल फॉर्म में ब्रेक करना, दैट इज नोन एज डाइजेशन. ओके, इफ वी टॉक अबाउट एंजाइम्स, एंजाइम्स हमारे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंजाइम? एंजाइम का काम है जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं हमारी बॉडी में उनकी स्पीड को अप करना और लो करना. ओके, विदाउट चेंजिंग द एंड प्रोडक्ट्स.
राइट। अब एंजाइम्स को सीक्रेट किया जाता है बाय द सेल ऑफ द स्टमक, इंटेस्टाइन एंड द अदर ग्लैंड्स। एंड उसके अलावा स्टमक एंड इंटेस्टाइन के अलावा भी हमारी बॉडी में कुछ ग्लैंड्स है, लाइक सलाइवरी ग्लैंड्स, पैनक्रियाज एक्सेट्रा। इन सभी के थ्रू एंजाइम्स को सीक्रेट किया जाता है, एंड देन दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। Third step which is involved in the heterotrophic nutrition, that is absorption. Means what? ये एक ऐसा प्रोसेस है जब फूड का सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है। उसके बाद जब फूड को बॉडी में पास किया जाता है, बॉडी फ्लूइड्स में पास किया जाता है, सच एज ब्लड में पास कर दिया जाता है, दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। मीन्स हमारा ब्लड जब उस डाइजेस्टेड फॉर्म को और फूड को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, सो दैट उसको फिर डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट किया जा सके, दैट प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। Next, we have assimilation. Assimilation means the process of using the absorbed food by the cells of the body for producing energy and utilizing for it for the growth and development of the body. Means अब assimilation में क्या है, जब फूड का एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन के बाद उस एब्जॉर्ब फूड को बॉडी के सेल्स के थ्रू यूज करता, ओके, बॉडी के सेल्स उस एब्जॉर्ब फूड को यूज करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए एंड फर्दर बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। That is known as assimilation. And the last process is egestion. Means एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे फिर अनडाइजेस्टेड फूड को या वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है, that is known as egestion. Now, next topic which we have is that is nutrition in unicellular and multicellular animals. अब unicellular and multicellular animals में किस तरीके से mode of nutrition carry out किया जाता है, let's start with it. First of all, we have unicellular animals, and number one, we are going to learn about amoeba. What is amoeba? Amoeba एक microscopic single celled organism है जो कि pond water में present होते हैं। ये एक simple organism है जिसकी body की shape irregular होती है, कोई definite shape नहीं होती, right? इसकी body में, amoeba की body के अंदर cell membrane and एक rounded nucleus and काफी सारे bubbles like vacuoles present होते हैं। अमीबा इज कैपेबल ऑफ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इट्स शेप एंड पोजीशन। एंड अमीबा के पास एक कैपेबिलिटी है कि वो कॉन्स्टेंटली अपनी बॉडी की शेप को एंड पोजीशन को चेंज कर सकता है, ओके। और उसके साथ वो क्या करता है, इट गिव्स आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एक या एक से ज्यादा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अमीबा प्रोड्यूस करता है, जिसको हम फॉल्स फीट और सीडोपोडिया कहते हैं, ऑलराइट। एंड यही फीट है जो अमीबा को हेल्प करते हैं इन देयर मूवमेंट एंड ऑल्सो टू कैप्चर द फूड, राइट। अमीबा अपने फूड को कैप्चर करता है या मूव कर पाता है किसके थ्रू, इन्हीं फॉल्स फीट के थ्रू, बिकॉज अमीबा डू नॉट हैव अ काइंड ऑफ माउथ। अमीबा के पास माउथ नहीं होता या कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है फूड को इनटेक करके उसको डाइजेस्ट करने के लिए, तो इट यूज इट्स फॉल्स फीट ओनली, राइट। नाउ इट फूड्स कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अमीबा के फूड के अंदर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मींस वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को खाता है। एंड जैसे ही अमीबा अपने सराउंडिंग में किसी भी फूड पार्टिकल को सेंस करता है, तो अमीबा अपने सीडोपोडिया को प्रोड्यूस करता है जो उस फूड पार्टिकल को सराउंड करते हैं एंड अल्टीमेटली अमीबा उस फूड पार्टिकल को अपनी बॉडी के अंदर इनटेक कर लेता है, राइट। ये फूड पार्टिकल अमीबा की बॉडी के अंदर जाके एक फूड वेक्यूल बनाता है। आफ्टर दैट द डाइजेस्टिव जूसेस, उसके बाद डाइजेस्टिव जूसेस को फूड वेक्यूल के अंदर सिक्रेट किया जाता है जो उस फूड को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करते हैं, ओके। एंड देन दिस डाइजेस्टेड फूड, फिर इस डाइजेस्टेड फूड को अमीबा की बॉडी एब्जॉर्ब करती है एंड एसिमिलेट करती है। एंड देन आफ्टर दैट जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे अमीबा अपनी बॉडी से थ्रू आउट करता है, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट से अपनी बॉडी से रिमूव कर देता है विद द हेल्प ऑफ अ टेम्पररी वेक्यूल, okay. So this is how the whole nutrition process goes in the amoeba. You can see this is the amoeba. ये amoeba है, इसका ये फूड पार्टिकल है, जैसे फूड पार्टिकल को ये सेंस करता है तो इस हमने फॉल्स फीड को बाहर की तरफ प्रोड्यूस करा, दैट इज सीडोपोडिया, एंड देन बॉडी के अंदर इनगल्फ कर लिया। इनगल्फ करने के बाद बॉडी फूड को डाइजेस्ट करेगी, एब्जॉर्ब एंड एसिमिलेट करेगी, एंड देन जो वेस्ट होगा उसे बॉडी रिमूव कर देती है, समवट लाइक दिस। ऐसे एब्जॉर्ब किया and digest kiya, and this how again the waste material has been excreted out by the body of amoeba. Next we have paramecium. What is it? ये भी एक क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है।
Alright, you can see this is paramecium. It has a stiff, paramecium के पास एक stiff hair like structures होते हैं जिसे हम cilia कहते हैं, जिनकी all over the body present है, और इन्हीं को paramecium अपने ingestion process के लिए use करता है. A constant movement of the cilia, cilia का एक constant movement है, यानी कि cilia constantly move करते रहते हैं इस तरीके से hair like projections जो outside the body present है, they are known as cilia. तो paramecium अपने cilia के constant movement के थ्रू फूड पार्टिकल्स को अपने माउथ के अंदर पुश करता है. ओके, माउथ लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि एग्जैक्ट माउथ नहीं है, माउथ जैसा स्ट्रक्चर होता है पैरामीशियम का, जिसके अंदर फूड पार्टिकल को पुश किया जाता है बाय द कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ सीलिया ऑफ द पैरामीशियम. एंड जो रेस्ट ऑफ द डाइजेशन प्रोसेस है वो बिल्कुल सिमिलर है एज दैट ऑफ अमीबा. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मल्टी सेलुलर एनिमल्स. मल्टी सेलुलर एनिमल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हाइड्रा. दिस इज हाइड्रा. राइट, ये एक सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल है जिसमें नंबर ऑफ टेंटेकल्स प्रेजेंट है अराउंड इट्स माउथ, एंड ये अपने टेंटेकल्स का यूज करता है फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड. ऑलराइट, बाय एंटेंगलिंग स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स एंड किलिंग देम विद द स्टिंग. उसके बाद ये टेंटेकल्स जो हैं ये क्या करते हैं, फूड को इनटू द माउथ पुश करते हैं एंड बॉडी कैविटी के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस पे सीक्रेट किए जाते हैं बाय द सराउंडिंग सेल्स, जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल है. राइट, आफ्टर दैट उस फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है बाय द कैविटी वॉल्स ऑफ द बॉडी, एंड देन वो हाइड्रा के बॉडी सेल्स में एसिमिलेट हो जाते हैं. नेक्स्ट वी हैव स्पाइडर. सो स्पाइडर क्या करता है, इट वीव्स अ स्टिकी वेब इन विच स्मॉल इंसेक्ट गेट स्टक. स्पाइडर एक स्टिकी सा वेब बनाता है जिसमें छोटे छोटे इंसेक्ट्स स्टक हो जाते हैं, एंड देन स्पाइडर सीक्रेट्स और इंजेक्ट्स. फिर उसके बाद स्पाइडर क्या करता है, डाइजेस्टिव जूसेस को अपने प्रे की बॉडी में इंजेक्ट करता है सो दैट वो इंसेक्ट के बॉडी पार्ट्स को डाइजेस्ट कर सके. और इस तरीके से जो स्पाइडर का फूड का डाइजेशन है वो एक्चुअली उनकी बॉडी के आउटसाइड यानी कि बाहर चलता है, एंड देन स्पाइडर फिर उस डाइजेस्टेड फूड को सक कर लेता है. नेक्स्ट वी हैव लीचेस. लीचेस के पास अपने माउथ पार्ट्स होते हैं अडेप्टेड फॉर पियर्सिंग, यानी कि लीचेस के पास अपने स्पेसिफिक माउथ पार्ट्स हैं जिसके थ्रू वो अपने होस्ट एनिमल या अदर एनिमल की बॉडी का जो ब्लड है उसको सक कर सकते हैं, यानी कि सिंपली अपने माउथ के थ्रू पहले अदर बॉडी एनिमल में, यानी कि जो दूसरे एनिमल की बॉडी है उसमें अपने माउथ को पियर्स करते हैं एंड देन उनके ब्लड को सक करते हैं. नेक्स्ट वी हैव बटरफ्लाइज एंड मॉस्किटोज. तो बटरफ्लाइज एंड मॉस्किटोज का काम है नेक्टर और ब्लड को सक करना बाय इट्स लॉन्ग ट्यूबुलर माउथ पार्ट व्हिच इज कॉल्ड प्रोबोसिस. नेक्स्ट वी हैव फ्रॉग. तो फ्रॉग भी अपनी लॉन्ग स्टिकी टंग का यूज करता है टू कैच द इंसेक्ट्स लाइक दिस यू कैन सी. ओके, एक फ्रॉग के पास भी वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें फूड को डाइजेस्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस. ओके, नाउ so this was the nutrition in different types of unicellular and multicellular organism. And now we are going to learn the whole nutrition process in the most developed animal known as human being. Alright, so we eat food to get energy. This we know, right? Carbohydrates, fat, protein, vitamins and minerals, ये सभी क्या है? They are the main components of food. And before food, okay, before food यानी कि food को energy ड्राइव करने के लिए यूज करने से पहले या अपनी ग्रोथ के लिए यूज करने से पहले फूड का स्मॉल एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस में ब्रेक होना बहुत जरूरी है सो दैट हमारी बॉडी इसे इजीली एब्जॉर्ब कर सके. ओके, एंड फूड को सॉल्युबल बनाया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. नाउ वी टेक इन फूड थ्रू आवर माउथ. अब हम कैसे फूड का इनटेक करते हैं, अपने माउथ के थ्रू. ओके, फ्रॉम द माउथ. माउथ से फिर फूड जो है काफी नंबर ऑफ ऑर्गन्स को पास करता है एंड ये सभी ऑर्गन्स मिलकर एक फूड कैनाल बनाते हैं विच इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल इन अवर बॉडी. नाउ एलिमेंट्री कैनाल, व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? एक लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब है जिसके अंदर न्यूमरस ऑर्गन्स इन्वॉल्व है. लाइक वी हैव माउथ विच इज नोन एज बकल कैविटी ऑल्सो. देन सेकंड वी हैव एसोफेगस विच इज नोन एज फूड पाइप. थर्ड वी हैव स्टमक, small and large intestine, rectum, anus. ये सभी different organs हैं which all together constitute our alimentary canal and इसी alimentary canal के through food step by step pass होता है and then it
it gets digested, absorbed, assimilated, and also digested by our body. So first we have what mouth. सबसे पहले हम human beings फूड का अपनी बॉडी के अंदर इंटेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ माउथ, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन, राइट? नाउ द डाइजेशन ऑफ फूड. अब स्टूडेंट्स, जैसे ही आप फूड को अपनी बॉडी के अंदर, इनफैक्ट अपने माउथ के अंदर इंजेस्ट करते हैं, तभी से फूड का जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है. बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल द माउथ कंटेन्स टीथ. माउथ के अंदर टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं. इफ वी टॉक अबाउट सलाइवरी ग्लैंड्स, तो वो हमारे टंग में प्रेजेंट है. एंड ये सलाइवरी ग्लैंड्स जो है क्या सीक्रेट करते हैं, एक वाटरी लिक्विड सीक्रेट करते हैं विच इज कॉल्ड सलाइवा. सलाइवा एक तरीके का डाइजेस्टिव जूस है जो कि फूड को सॉफ्ट बनाता है इन द माउथ, सॉफ्ट एंड मॉइस्ट बनाता है. सेकेंडली, फिर उसके बाद ये सलाइवा जो है फूड के साथ मिक्स हो जाता है. जैसे जैसे आप अपने फूड को च्यू करेंगे, चबाओगे, ये फूड जो है सलाइवा के साथ मिक्स होता है, एंड दिस इज नोन एज मैस्टिकेशन, राइट? मैस्टिकेशन के थ्रू फूड जो है सॉफ्ट बनता है, मॉइस्ट बनता है, एंड देन हम उसे इजीली swallow कर सकते हैं इनसाइड द बॉडी. सेकेंडली, देन वी हैव टंग ऑल्सो इन अवर माउथ. एंड टंग क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है विच इज अटैच्ड एट द बैक ऑफ द बकल कैविटी. हमारी बकल कैविटी यहाँ है, जिसके साथ हमारा टंग अटैच्ड होता है, एंड ये सलाइवा को मिक्स करता है विद द फूड. इट हेल्प्स इन मिक्सिंग द सलाइवा विद द फूड, राइट? इफ यू टॉक अबाउट टीथ, तो टीथ का काम है फूड को स्मॉल पीसेस में कट करना, एंड देन ये स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड जो है कहाँ पास होता है? इट गोज डाउन द एसोफेगस और फूड पाइप. You can see this is the whole digestive system in human body. Okay, this is mouth, and mouth के थ्रू ये long tube-like structure है जिसे हम esophagus और food pipe कहते हैं. Then food यहाँ से पास होकर stomach में आता है, which is J-shaped like organ. फिर उसके बाद small intestine में आएगा, then large intestine में, and after that the anus will help you to excrete out the waste undigested food from your body. Okay, so now let's back to the topic. So the tongue. The tongue जो है student, ये किस से about 10,000 tiny nerve cell या taste buds के साथ covered है, जो कि आप जो भी चीज खा रहे हो या पी रहे हो उसके बेसिक टेस्ट को डिटेक्ट करने में हेल्पफुल होते हैं, राइट? सी एन एवरेज पर्सन, एक एवरेज पर्सन जो है अबाउट 0.5 to 1.7 लीटर्स ऑफ सलाइवा प्रोड्यूस करता है ईच डे. नेक्स्ट वी हैव टीथ. तो टीथ क्या है? टीथ हार्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे माउथ कैविटी के जॉज में लोकेटेड होते हैं, लोअर एंड अपर दोनों ही जॉ में. ओके, टीथ का काम है हमारे फेस को शेप प्रोवाइड करना एंड फूड को ब्रेक करना इनटू स्मॉलर पीसेस बाय कटिंग एंड च्यूइंग, राइट? ह्यूमन बींग्स के पास 2 सेट ऑफ टीथ होते हैं एट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ, राइट? एट बर्थ के टाइम पे जो एक इन्फेंट बेबी होता है, इट हैज नो टीथ, राइट? एंड देन जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ है वो आफ्टर 6 मंथ के बाद आना शुरू होता है. ओके, एंड धीरे धीरे फुल सेट ऑफ टीथ जो है, फर्स्ट सेट जो टीथ का है वो अपीयर हो जाता है, एंड देन इट फॉल ऑफ. धीरे धीरे जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ जो है फॉल करना शुरू करते हैं स्लोली बिटवीन द 6 to 8 years ऑफ एज. एंड इन टाइप ऑफ टीथ को मिल्क टीथ कहा जाता है, एंड दे आर टेम्पररी, राइट? इतने टोटल 20 मिल्क टीथ हैं जिन्हें रिप्लेस किया जाता है देन आफ्टर अनदर सेट ऑफ टीथ नोन एज परमानेंट टीथ, एंड परमानेंट टीथ आर टोटल 32 इन नंबर. बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, अब इनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बेसिस पे टीथ जो है देयर आर 4 टाइप्स, दैट इज इंसीजर्स जिसे हम कटिंग और बाइटिंग टीथ कहते हैं. Second is canines, which are known as tearing teeth. Third is premolars and molars, which are known as grinding or chewing. तो स्टूडेंट्स, जो फ्रंट टीथ है वो आपके फ्लैट एंड थिन होते हैं, जिनकी एजेस शार्प होती हैं, एंड ये हमारे कटिंग और बाइटिंग टीथ हैं. ओके, टीयरिंग टीथ और जो कैनाइंस हैं ये हमारे माउथ के कॉर्नर्स में होते हैं, एंड इनका काम है फूड को ग्रास एंड टीयर करना. Then we have broad, strong and flat teeth. इसके बाद कुछ broad, strong and flat teeth है हमारे जॉ के ends में, जिनका काम है क्या? फूड को ग्राइंड करना. Therefore they are known as grinding or chewing. Then the third molar, जो थर्ड मोलर्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो विजडम टीथ भी कहलाते हैं. ठीक है,
ये कब अपीयर होता है? व्हेन अ पर्सन इज बिटवीन 18 to 20 years of age. ठीक है, नाउ next you can see they have shown you the different types of teeth. First of all we have given you the incisors. Incisors की shape कैसी होती है? Chisel shaped. Okay, and इनका function है cutting and biting. Food को cut and bite करना. And कितने? ये आपके 4 present है in the upper jaw. Then if we talk about canines, 4 in the upper jaw and 4 in the lower jaw. Means what? Total 8 incisors are there. Then next we have what? Canines. Canines आपके sharp and pointed होते हैं. इन्हें हम काम है इनका क्या? Tearing the food. And total how many? They are 2 in the upper jaw, 2 in the lower jaw. Total 4 canines are there. Then next we have premolars जिनकी shape है flat and ridged. यानी कि flat होते हैं, ridged होते हैं, यानी कि इनके पास small grooves होते हैं. इनका काम है, premolars का काम है food को crush करना and crack करना. And there are 4 in the upper jaw, 4 in the lower jaw, means total 8 premolars are there. Then molars की बात करें तो molars की shape है flat and white and इनका काम है food को grind and chew करना. Number की बात करें तो there are 6 in the lower jaw, 6 in the upper jaw, total 12. That means total we have how many? 32 teeth in the permanent set of teeth. See, the white substance that covers the teeth is called enamel. इसके अलावा हमारे teeth पे एक white color का substance होता है जो present होता है and ये सबसे hardest substance है human body में which is known as enamel. Then if we talk about elephants, elephants में 2 tusk present होते हैं and वही उनके incisors हैं. इन्हीं का यूज एनिमल्स करते हैं या एलिफेंट्स करते हैं फॉर डिगिंग एंड ऑल्सो फॉर फाइटिंग, राइट. इफ यू टॉक अबाउट डेंटल केयर, सो डेंटल केयर सेज दैट अवॉइड ईटिंग टू मच स्वीट. बहुत ज्यादा स्वीट्स हमें नहीं खानी है एंड अपने माउथ को रिंस करना चाहिए विद वाटर आफ्टर एवरी मील. ऑलराइट. देन नेक्स्ट, ब्रश योर टीथ डेली इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड. एंड हमेशा twice a day हमें अपने teeth को brush करना चाहिए. First of all daily in the morning time and then before going to bed at the night time. After that if we talk about plaque, what is plaque? Plaque एक sticky layer है जो कि हमारे teeth के ऊपर coat करती है and इसके अंदर एक बैक्टीरिया है. ये बैक्टीरिया जो plaque में है ये क्या करता है? tooth decay cause करता है and gum diseases भी cause करता है. If अगर plaque को हम proper brushing के थ्रू remove नहीं करते हैं तो ये एक एसिड प्रोड्यूस करेगा जो कि धीरे धीरे इनामल को डिसॉल्व कर देता है और हमारे टूथ पे छोटे छोटे होल्स बना देता है विच इज नोन एज कैविटीज एंड इसी से हमारा टूथ डिके होता है. ओके, सो वी शुड विजिट द डेंटिस्ट. इसलिए हमें डेंटिस्ट के पास वंस अ ईयर जरूर जाना चाहिए फॉर अ डेंटल चेकअप. ऑलराइट. नाउ नेक्स्ट वी हैव व्हाट? एसोफेगस विच इज नोन एज फूड पाइप आल्सो. तो एसोफेगस क्या है? फूड पाइप है जो हमारे माउथ को स्टमक के साथ कनेक्ट करता है. ओके, ये हमारे नेक एंड चेस्ट के अलाउंग रन करता है. एसोफेगस का काम है उस स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड को जो हमारे माउथ में अभी पार्शियली डाइजेस्टेड फूड था, पार्शियली ऑल्सो नॉट वी कैन से स्लाइटली होगी, ठीक है. तो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड को माउथ से स्टमक तक ले जाने का फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? एसोफेगस. एंड जैसे कि फूड एसोफेगस में एंटर करता है तो एसोफेगस की जो वॉल्स है, ओके, एंड वो वॉल्स जिस मसल से बनी है वो मसल्स ऑल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन परफॉर्म करती है. यानी कि धीरे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स इस तरीके का फंक्शन परफॉर्म करती है जिससे एक वेव लाइक मूवमेंट प्रोड्यूस होता है एंड ये मूवमेंट फूड को नीचे की तरफ पुश करता है डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द स्टमक. एंड इस वेव लाइक मूवमेंट को वी से पेरिस्टल्टिक मूवमेंट and commonly we can say peristalsis also. Then the next organ which we have is stomach. Stomach is a thick-walled J-shaped muscular bag. Stomach एक thick-walled J-shaped muscular bag है जो हमारे abdomen में left hand side present होता है. Okay, it received the slightly digested food from the esophagus. जो esophagus के through slightly digested food pass हो रहा था from the mouth, now it enters into this organ known as stomach. Okay. एंड स्टमक जो है अप टू 2 liters ऑफ फूड को होल्ड कर सकता है एट अ पर्टिकुलर टाइम. देन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे स्टमक की जो इनर लाइनिंग है वो म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस को प्रोड्यूस करता है.
हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है उन बैक्टीरियाज को किल करना जो हमारे स्टमक में एंटर कर चुके हैं अलोंग विद द फूड। एंड देन उसके अलावा जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस है एंड जो प्रोटीन्स है इन द स्टमक, उनके ऊपर प्रॉपर एक्शन में भी हेल्पफुल होता है। इफ यू टॉक अबाउट म्यूकस, तो म्यूकस का काम है स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द एसिडिक इफेक्ट ऑफ दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, देन द स्टमक की मसल्स जो है उस फूड को फर्दर क्रश करती हैं एंड डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स करती हैं। इसके बाद डाइजेस्टिव जूसेस जो है फूड में प्रेजेंट प्रोटीन्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं विच इज नोन एज अमीनो एसिड। एंड देन ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है ये हमारे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ओके, so basically there is an enzyme known as pepsin which is secreted by our stomach, all right, and this pepsin enzyme का function है कि फूड में जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स हैं उन्हें सिंपलर पेप्टोज में कन्वर्ट करना। Now after that the food has been passed into the small intestine. The small intestine is a linear narrow coiled tube which is about 7.5 meters long. इतना 7.5 मीटर लॉन्ग होती है एक coiled tube which is known as small intestine, and ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। एंड देयरफॉर स्मॉल इंटेस्टाइन को हमारे डाइजेस्टेड फूड का जो है मेन ऑर्गन भी माना जाता है फॉर इट्स एब्जॉर्प्शन, यानी कि कंप्लीट डाइजेशन भी फूड का इसी ऑर्गन में होता है। एंड आफ्टर दैट स्मॉल इंटेस्टाइन ही है जो उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब भी करता है, राइट। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है स्टमक से, वो कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है पेनक्रियास एंड लिवर की जो सिक्रेशंस हैं डाइजेस्टिव जूसेस के, उन्हें रिसीव करता है एंड अपने खुद के वॉल्स के भी जो जूसेस या सिक्रेशंस हैं उन्हें प्रोड्यूस करता है। एंड फिर ये डाइजेस्टिव जूसेस जो है फूड का कंप्लीट डाइजेशन करते हैं इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर टॉक अबाउट लिवर, लिवर जो है हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है एंड ये एक लिक्विड सिक्रेट करता है विच इज कॉल्ड बाइल जूस। बाइल जूस हमारा स्टोर होता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में विच इज नोन एज गॉल ब्लैडर। एंड बाइल का काम है फूड में जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स है उनको स्मॉल चेन में कन्वर्ट करना सो दैट फैट जो है इजिली डाइजेस्ट हो सके। एंड देन ये बाइल जूस फैट को टिनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है जो फर्दर सिंपलर फॉर्म में ब्रेक होती है नोन एज फैटी एसिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल अंडर द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। देन वी हैव पेनक्रियास, पेनक्रियास का काम है पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करना एंड ये स्टार्च को सिंपल शुगर में ब्रेक करते हैं एंड प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। आफ्टर दैट द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स है वो एक इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करती हैं जिनका काम है कार्बोहाइड्रेट्स को, फूड में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपलेस्ट शुगर में व्हिच इज नोन एज ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। So like this the whole digestion or the complete digestion of food takes place in the small intestine only by these different types of digestive juices and enzymes. Next, now the digested food. अब इसके अलावा digested food जो है अब blood vessels में पास होगा small intestine की walls के through and this process is called absorption process, right? So actually जो small intestine की inner walls हैं इनमें कुछ finger like projections हैं, all right? Thousands of finger-like projections are present, which are known as villi. And villi जो है, they are very richly supplied with the blood vessels. Secondly, in villi का function है to increase the surface area. वो जो digested food है, उनके absorption के लिए surface area को increase करना is also the function of villi. And then ये absorbed substances जो है, इनको क्या, इनके through या absorbed substances को ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी सो दैट हमारे ऑर्गन्स को एनर्जी मिल सके एंड प्रॉपरली उनका यूटिलाइजेशन किया जा सके फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन। तो बेसिकली ग्लूकोज क्या करता है? ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन, ग्लूकोज सेल्स में ब्रेक होता है ऑक्सीजन की हेल्प से टू गिव एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देन जो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल है ये हमारे अंडर द स्किन एब्जॉर्ब हो जाते हैं, स्टोर रहते हैं एंड ये एज अ एनर्जी रिजर्व एक्ट करते हैं, राइट?
अवर बॉडी, हमारी बॉडी को जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में मिलती है, विच इज नोन एज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एंड ऑल्सो एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी. Now the next organ of our alimentary canal is large intestine. So the digestion, absorption and assimilation. ठीक है, फूड का डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट हो जाता है. लेकिन सम फूड, कुछ ऐसा फूड है जो अभी भी अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब रहता है, एंड देन यही अनडाइजेस्टेड फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में पास होता है. लार्ज इंटेस्टाइन अराउंड 1.5 मीटर लॉन्ग है एंड इसका फंक्शन है टू एब्जॉर्ब. इसका फंक्शन भी क्या है कि जो मोस्ट ऑफ द वाटर है एंड कुछ सॉल्ट अभी भी रिमेनिंग है उस अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल में, उन्हें एब्जॉर्ब करना. आफ्टर द रिमूवल ऑफ वाटर, फिर वाटर के रिमूवल के बाद उस अनडाइजेस्टेड फूड को हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के सबसे लास्ट पार्ट में स्टोर किया जाता है, विच इज नोन एज रेक्टम. एंड देन ये जो अनडाइजेस्टेड फूड या वेस्ट मटेरियल है इसे हमारी बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है थ्रू एनस. ओके, किस फॉर्म में, फीसिस की फॉर्म में. एंड इसी रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड को, इस प्रोसेस को वी कॉल digestion process. All right, so this is how the whole process of digestion takes place in the human beings through a digestive tract or alimentary canal. Now they have shown you over here. सबसे पहले फूड है जिसे हम अपने माउथ के थ्रू इनटेक करेंगे, देन माउथ में मेस्टिकेशन होगा फूड का, देन इट विल पास इनटू द स्टमक. ओके, थ्रू व्हाट, एसोफेगस और फूड पाइप. देन स्टमक में एंजाइमेटिक एक्शंस होते हैं, देन इट गोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को डाइजेस्ट किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, एंड देन इट पासेस टू द लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब फूड का यूटिलाइजेशन किया जाता है, एंड देन उसे स्टोर किया जाता है टू अ लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन नोन एज रेक्टम. एंड देन रेक्टम से हम इसे फूड को या अनडाइजेस्टेड वेस्ट को क्या कहते हैं, पीसेस की फॉर्म में एनस के थ्रू रिमूव कर देते हैं. राइट, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इज डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट्स. अब बात करते हैं हम रूमिनेंट्स के डाइजेस्टिव सिस्टम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हु आर रूमिनेंट्स? सी, द ग्रास ईटिंग एनिमल्स. जो ग्रास यानी कि घास खाने वाले एनिमल्स है, सच एज काउ, बफलो एंड गोट, दे आर नोन एज रूमिनेंट्स. व्हाई? लेट्स सी इन दिस टॉपिक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं ये अपने फूड को 2 स्टेप्स में डाइजेस्ट करते हैं. ओके, इनके स्टमक्स में हाईली स्पेशलाइज्ड चैम्बर्स होते हैं, एंड वो चैम्बर्स का जो नेम है दैट इज ल्यूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम एंड एबोमेजम. ओके, सबसे पहले फूड जो है इनके ल्यूमेन में पास होता है, जहाँ पे इसे पार्शियली डाइजेस्ट किया जाता है, एंड इस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को वी कॉल कर्ड. ओके, सो ल्यूमेन जो है स्टूडेंट सबसे लार्जेस्ट चैम्बर है, एंड यहाँ से फूड जो है सेकंड चैम्बर में पास होता है, विच इज नोन एज रेटिकुलम. राइट, उसके बाद फूड को वापस से माउथ में रिटर्न किया जाता है अगेन फॉर चूइंग. राइट, एंड ये प्रोसेस कहा जाता है रूमिनेशन, एंड देयरफॉर इन्हीं एनिमल्स को हम रूमिनेंट्स कहते हैं क्योंकि इनके अंदर ये रूमिनेशन प्रोसेस कैरी आउट होता है. इस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को, इस कर्ड को दोबारा से माउथ में वापस लाकर च्यू किया जाता है प्रॉपर्ली बाय दीज एनिमल्स, एंड देयरफॉर दीज एनिमल्स आर नोन एज रूमिनेंट्स एंड द प्रोसेस इज नोन एज रूमिनेशन. आफ्टर दैट जो फूड का डाइजेशन है वो फर्दर बचे हुए 2 चैम्बर्स में होता है, दैट इज ओमेजम एंड एबोमेजम में. एबोमेजम जो है जस्ट ह्यूमन स्टमक की तरह वर्क करता है, जैसे ह्यूमन स्टमक काम करता है वैसे एबोमेजम वर्क करता है. ओके, यहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट किया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, एंड यहाँ से 4th चैम्बर में जो फूड है वो एंटर करता है. ओके, यानी कि फिर इसके 4th चैम्बर में जाएगा, एंड 4th चैम्बर से अब फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पे उस डाइजेस्टेड फूड के अंदर जो भी हमने न्यूट्रिएंट्स ड्राइव किए हैं, इन एनिमल्स ने जो न्यूट्रिएंट्स ड्राइव किए हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ द रूमिनेंट्स. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ द होल digestive system of a ruminant works. You can see they have given you, this is the esophagus, all right, then this is rumen, then abomesm, omesm, reticulum, and this is the intestine. पूरा digestive system यहाँ पे जो है आपको एक ruminant का shown है. Now one more interesting thing which I have given you, that is cellulose. Cellulose क्या है? It is a type of carbohydrate.
ओके, द ग्रास, जो ग्रास है स्टूडेंट्स, उसके अंदर सेल्यूलोज नाम का कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। वी एज अ ह्यूमन बींग्स, हम लोग क्या है, सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते, जैसे कि कैटस कर लेते हैं। कैटस ग्रास ही खाती है एंड उनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इस एबिलिटी को होल्ड करता है कि वो इजिली सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। बट वी द ह्यूमन बीइंग कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज बिकॉज द बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया सेल्यूलोज को डाइजेशन करने में हेल्पफुल होता है, दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन। आफ्टर दैट द फैट्स, जो फैट्स प्रेजेंट है गोट के मिल्क में, वो काफी सिंपलर होता है देन दोज विच इज इन द मिल्क ऑफ काउ और बफलो, एंड देयरफॉर जो गोट का मिल्क है वो काफी इजी है टू डाइजेस्ट एज कंपेयर टू द मिल्क ऑफ काउ और बफलोस। राइट, that's all for the chapter. These were the different modes of nutrition or the whole process of digestion. How does it take place in different types of animals? And I hope the chapter was very clear to you. Okay, let's meet in the next session with the new and exciting topic. Till then, keep going well, learn well, and thanks to everyone.